Hello everyone. Today we are starting with the part 2 of the chapter Laws of Motion of the class 9. Okay, yesterday we had already discussed about the force, the effects of force, the different types of forces, the contact force, the non-contact force and its different types. So today will be moving ahead in the chapter and we'll be talking about the laws of motion. That is, we're going to start with the first law of motion today, and we're going to talk about its a little part inertia, relation between mass and inertia. This thing we are going to talk about it today. Okay, talking about the statement of the Newton's first law of motion, what it says. Let us start. Newton's first law of motion. What it says, let us see. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion, often referred to as Galileo's laws. Okay, tells us a body at rest. It tells us that a body at rest will continue to be at rest, and a body in motion will be moving in the same direction with the same speed, will be moving in the same direction with the same speed until and unless an external force is applied on it. It means अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी. कब तक वो रेस्ट पे रहेगी? जब तक आप उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दोगे तो रेस्ट से ही हो सकता है मोशन में आ जाए. अगर कोई बॉडी मोशन में है वो उसी सेम डायरेक्शन में मूव करती जाएगी और उसी सेम स्पीड से मूव करती चली जाएगी जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें. तब उसका हो सकता है मोशन में, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए या उसकी स्पीड चेंज हो जाए. सही है. सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or a body continues to be in a state of motion in the same direction with same speed until unless we apply an external force on it. Okay. Now in the Newton's first law of motion, two parts have been described over here. Okay. What are the two parts? That is inertia and force. Two things have been described in Newton's first law of motion. Now, I'm telling you what is inertia. Now, the Newton's first law of motion. Just let me write, and I will tell you. Newton's first law of motion. It says a body continues to be in a state of rest or in a state of motion moving with the same speed and in the same direction until and unless an external force is applied on it. Okay. Now just see over here. The Newton's first law of motion tells us about two things over here. That it tells us about the inertia. Okay. This part from here to here, that is, this part is telling us about inertia. This part is telling us about inertia, that a body will be in its state, whatever be the state. If the body is at rest, it will be in a state of rest, or the body is in motion, will be in a state of motion, the same speed and in the same direction. So this is telling about inertia. Further, I will be telling you what is inertia is. Inertia is actually, let's talk about inertia. Inertia is the inherent property of a body. Often we write this. Let us tell me what this is.
इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। नाउ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी का मतलब ये हो गया कि जो है बॉडी ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी का, आप और उसको बॉडी से अलग नहीं कर सकते हो। ये उसके नेचर के बारे में बता रहा है इनर्शिया। इनर्शिया उस पर्टिकुलर नेचर के बारे में बता रहा है कि अगर वो जो बॉडी का स्टेट है वही वो स्टेट रहेगा, सही ना। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। तो दिस इज इनर्शिया। See, it tells us about the virtue of the body. Okay, I'm now talking about the force. Force वो external cause है यहाँ पे, ये सेकेंड पार्ट हमारा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वो हमारा फोर्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो फोर्स क्या है? इज दैट एक्सटर्नल कॉज which is helping to change the state of the motion or the state of rest of the body। यानी कि फोर्स एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट है यहाँ पे, एक एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला रहा है या मोशन से उसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर रहा है। यानी कि दो बातें यहाँ पे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, एक इनर्शिया के बारे में बता रही है और दूसरा हमारा इट इज टेलिंग अबाउट द फोर्स। सो टू थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। अब मैं बात यहाँ पे करता हूँ, लेट अस टॉक अबाउट इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देयर इज वी हैव टू टॉक अबाउट inertia। Before that I need to tell you about something about force। फोर्स के बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ तुम लोग को। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि उसके साथ में क्या एसोसिएटेड है? डायरेक्शन एसोसिएटेड है, सही ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ में डायरेक्शन एसोसिएटेड है। अब इसके आगे हम लोग एक बात आगे करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो मैं बता ही चुका हूँ तुम लोग को पिछले पार्ट में, और पहले भी पार्ट्स में बता चुका हूँ। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ ही साथ में उसमें उसका यूनिट भी होता है, क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन उसका एसआई यूनिट है और उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मास और इनर्शिया के बारे में बात कर लेते हैं। मास और इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि इनर्शिया टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा हम लोग को। लेट अस डिस्कस द टॉपिक इनर्शिया नाउ। ओके, अब इनर्शिया के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या है? मैंने भी तुम लोग को बताया था, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी यानी कि एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी की व्हिच कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ बॉडी। एंड इनर्शिया has a direct relation with mass। inertia is dependent on, किस पे डिपेंडेंट है ये? it is dependent on mass of the body। inertia is dependent on mass of the body। एक बॉडी है जिसका मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा होगी। एक ट्रक है, एक कार है। एक ट्रक है, एक कार है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ट्रक है, एक कार है। किसका मास यहाँ पे ज्यादा है? ट्रक का मास ज्यादा है, एंड देयरफॉर ट्रक will have greater inertia with respect to the car। सही है। तो inertia is directly depending on mass। more the mass of the body, more will be the inertia। okay, further talking about it, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज हैं, बॉडी ए हो गई और बॉडी बी हो गई। दोनों की यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v। दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मास फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 10 किलोग्राम और इसका मास यहाँ पे दे रखा है 15 किलोग्राम। किसका इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे इनर्शिया किसका ज्यादा होने वाला है? इसका इनर्शिया ज्यादा होने वाला है। इनर्शिया ऑफ v will be greater than the inertia of let me give the around there। ओके, अब यहाँ पे इनर्शिया किसका ज्यादा है? यहाँ पे इनर्शिया b वाले का ज्यादा है देन a। क्यों ज्यादा है इनर्शिया b वाले का ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे उसका मास ज्यादा है। therefore the inertia of body B is greater than the inertia of body A because it is directly depending on the mass of the body। more the mass of the body, more is the inertia of the body। okay, further talking about it, दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। वन एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर व्हिच आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। अब जिसका मास यहाँ पे ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल वी टेक द केस ऑफ अ टेनिस बॉल एंड द क्रिकेट बॉल। टेनिस बॉल यहाँ पे उसका मास क्या है? कम है,
और क्रिकेट बॉल का मास यहाँ पे ज्यादा है, तो यानी कि दोनों अगर सेम वेलोसिटी से भी ट्रैवल कर रही हैं तो क्रिकेट बॉल को स्टॉप करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा होगी। इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टॉप दी क्रिकेट बॉल बिकॉज इट हैज ग्रेटर इनर्शिया एज कंपेयर टू दी टेनिस बॉल। ओके, सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। एक लोडेड ट्रक हो गया, एक अनलोडेड ट्रक हो गया। लोडेड ट्रक यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे तो लोडेड ट्रक का मास यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और अनलोडेड ट्रक है उसका मास क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, एंड देयरफॉर इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू सेट इनटू मोशन अ लोडेड ट्रक देन एन अनलोडेड ट्रक। यानी कि लोडेड ट्रक को मोशन में लाने के लिए डिफिकल्टी हम लोग फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, और अनलोडेड ट्रक उसका क्या है, इनर्शिया कम है, तो यानी कि वो आसानी से इट विल कैन बी सेट इनटू मोशन एज कंपेयर टू द लोडेड ट्रक। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ इनर्शिया एंड द एग्जांपल्स एज इलस्ट्रेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ। ओके, काइंड्स ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। दो तरीके की इनर्शिया होते हैं यहाँ पे, तो बात कर लेते हैं। We are going to talk about two types of inertia. अब इनर्शिया मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग बताया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहती है, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। अब तो इनर्शिया भी दो तरीके का वही हो गया, एक रेस्ट वाला हो गया और एक मोशन वाला हो गया। इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स, inertia of rest and inertia of motion। ये क्या कहता है? inertia of rest ये कहता है a body at rest will continue to be at rest until unless an external force is applied on it। यानी कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी until unless आप एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई करो और बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत यहाँ पे होगी। अब inertia of motion क्या कहता है? A body if in motion it will be moving with the same speed in the same direction until unless you apply an external force on it। यानी कि अगर बॉडी के मोशन में कोई भी चेंज लाना है स्पीड में या डायरेक्शन में तो हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज्ड। सही है, ये दो हमारे इनर्शिया हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। तो इसी में बेस्ड हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं व्हिच विल बी कमिंग इन एग्जाम, वो हमारे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। ओके, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल है व्हेन अ ट्रेन, ध्यान से समझना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू लेट मी नो। इफ अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड टू फॉल बैकवर्ड। फिर से मैं बोलता हूँ यहाँ पे, इफ द ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। यानी कि अगर ट्रेन है सामने चलने लगती है, ट्रेन चलने लगती है तो पैसेंजर क्या करता है, ट्रेन आगे चलने लगी तो पैसेंजर क्या करेगा, हल्का सा वो बैकवर्ड हल्का सा लीन होगा, ठीक है ना, हल्का सा पीछे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, लेट्स सी। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। व्हेन द ट्रेन सेट्स इनटू मोशन, व्हेन द ट्रेन सेट्स इनटू मोशन, मैं एक फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन है और ये हम लोगों से कहा जा रहा है ये ट्रेन है और ट्रेन मोशन में सेट हो गई। यहाँ पे जो पर्सन है ये पर्सन हल्का सा पीछे की तरफ फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा? व्हेन द ट्रेन सेट्स इनटू मोशन, ट्रेन मोशन में सेट करेगी, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के यानी कि जो लेग्स हैं हमारे, सही है ना, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन। तो जब ट्रेन मोशन में हो जाएगी तो लोअर पार्ट हमारी बॉडी का वो भी क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, सही है ना। व्हेन द ट्रेन सेट्स इनटू मोशन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो सेट्स इनटू मोशन, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो अपर पार्ट हमारी बॉडी का है, इज स्टिल एट रेस्ट। किस पे है? स्टिल एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सही ना, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है मेरे को, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब ट्रेन मोशन में आ जाती है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ट्रेन आल्सो सेट्स इनटू मोशन, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा,
इट वी ट्राई टू फॉल बैकवर्ड, हम लोग हल्का सा थोड़ा पीछे गिर जाएंगे उसमें करेंगे, सही ना। तो ये चीज हम लोग को यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं एंड दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज अपर पार्ट हमारा अभी भी रेस्ट पे है एंड देयरफॉर वी फॉल बैक, हल्का सा बैकवर्ड लीनिंग हो जाते हैं हल्का सा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है यहाँ पे when a hanging carpet is beaten with a stick the dust particles start falling out of it। तो उन्होंने देखा होगा कि घर पे कारपेट्स होते हैं, मैट्स होते हैं, तो उन लोग से डस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर डस्ट निकालने के लिए एक काम करते हैं, या फिर एक स्टिक ले लेते हैं और स्टिक से हम लोग उसको मैट को झाड़ने लगते हैं, सही ना, बीट करने लगते हैं। या फिर एक दूसरा काम हमारा ये है, या फिर कोई बॉल होगी तो बॉल पे हम मैट को जोर से मारते हैं। तो ये क्यों करते हैं, व्हाई द रीजन, व्हाट द रीजन इज दैट वी आर डूइंग दिस थिंग। देखो यहां समझना, मैट है और मैट को मैं किससे बीट करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बीट द मैट विद द स्टिक। अब मैट से मैंने जब जैसे ही मैंने स्टिक से मैट को बीट करा, देखो मैट को मैंने स्टिक से बीट करा तो मैट क्या हो गया, मैट सेट्स इनटू मोशन, मैट क्या हो गया, मैट सेट्स इनटू मोशन। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स थे वो अभी भी क्या है, रेस्ट पे है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये मैट था, मैंने इसको बीट करा और बीट करने पे क्या हुआ, इसमें देखो डस्ट पार्टिकल्स ये हैं, अब बीट करने पे क्या हुआ कि मैट तो किस पे आ गया, मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया तो मोशन में जब आ जाएगा, हाँ मोशन में आ गया क्योंकि मैंने उसे बीट कराया विद द स्टिक। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अभी भी क्या है, रेस्ट पे है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट and therefore they fall downward under the influence of gravity, simple solve, okay। थर्ड यहाँ पे on shaking or jerking the branches of the tree the fruits fall down। अब हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि फ्रूट्स हैं, अगर फ्रूट्स को तो जैसे कि आम का पेड़ है, सही है, मैंगो का ट्री है, तो उसको अगर मुझे मैंगो यहाँ नीचे गिराना है तो मैं करता क्या हूँ, बेसिकली जो ब्रांचेस है उनको मैं बहुत तेजी से जर्क देना स्टार्ट कर देता हूँ, और जब जर्क देना स्टार्ट कर देता हूँ तो मैंगो जो भी है, मैंगो है या फिर कोई भी फ्रूट है वहां पे लगा हुआ है ब्रांचेस में, तो इट फॉल डाउन। ऐसा क्यों होता है, व्हेन आई स्टार्टेड जर्किंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री they are set into motion, but the fruit is still at rest due to inertia of rest, and the fruit gets detached away from the branches of the tree। detached का मतलब वो टूट जाता है from the branches of the tree, क्योंकि branches हमारे किस में हो गए, मोशन में आ गए, हाँ, लेकिन फ्रूट हमारा किस पे है, अभी भी रेस्ट पे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड देयरफॉर it gets detached away and it falls under the influence of gravity। okay, आगे है हमारा on striking the coin at the bottom of the pile of the carom coins with a striker the lowest coin only moves away while the rest of the pile remains intact। okay, छोटा सा एक एग्जांपल है, उसी के डायग्राम हल्का सा छोटा सा बना लेता हूँ। ओके देखो यहाँ पे कैरम सभी ने खेला है, तो कैरम में होता क्या है कि एक पाइल होती है, यहाँ पे देखो ये पाइल है और पाइल है ये कॉइन्स की, और यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे स्ट्राइकर है और इस स्ट्राइकर से मैं इस स्ट्राइकर को यहाँ पे मोशन में सेट करता हूँ। मैं जब स्ट्राइकर को मोशन में सेट करता हूँ तो जब ये स्ट्राइकर नीचे वाले कॉइन से टकराएगा तो जो नीचे वाला कॉइन है इट इज सेट इनटू मोशन, यानी कि ये स्ट्राइकर किसमें है, मोशन में है, एंड द लोअर मोस्ट कॉइन जो हमारा है पाइल का वो भी किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा और वो सामने चला जाएगा। बट द अपर लॉट जो है हमारा पाइल का still at rest due to inertia of rest, और तभी
जब ये मोशन में आ जाएगा, ये वाला हमारा सबसे नीचे वाला पॉइंट, और ये मोशन में आ करके यहाँ से चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो लॉट है हमारा पाइल है, ये हल्का सा नीचे आ जाएगा और वो उसकी प्लेस ले लेगा नीचे वाले की, और यहाँ पे ये आ जाएगा, सही है, एंड इट विल नॉट फॉल डाउन। तो हुआ क्या यहाँ पे, बेसिकली द स्ट्राइकर sets the lower coin into motion, but the rest of the pile is still at rest due to inertia of rest, and therefore it does not fall, it does not move anywhere, and it just takes the place of the lowermost coin, उसकी जगह यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। Okay, when a smooth card placed on the mouth of a tumbler is flicked sharply in the horizontal direction, the card flies away and the coin kept over the card falls into the tumbler। एक ग्लास है और ग्लास टम्बलर है, इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख दिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक सिक्का रखा है, यहाँ पे ये सिक्का रखा हुआ है, कॉइन रखा है मैंने, सिक्का रख दिया है यहाँ पे। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने ऐसे इसको करा, जब इसको ऐसे स्ट्राइक करा है तो ये जो कार्डबोर्ड है will set into motion, the cardboard will set into motion and it moves away, और cardboard will be set into motion and it moves away, cardboard चला गया आगे because it was set into motion, but the coin is still at rest due to inertia of rest and it falls down under the influence of gravity into the tumbler। सही है, आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं, when a corridor train suddenly starts, the sliding doors of the some compartments may open। हम लोग देखा होगा कि कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, एक्चुअली ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम लोग बसेस की बात करते हैं, तो हम लोग ने एक चीज़ देखी होगी, जैसे ही वहाँ पे ट्रेन यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बसेस भी ले सकते हैं, ट्रेन या बस आगे जैसे बढ़ती है तो वैसे उसका जो डोर है वो बैकवर्ड हल्का सा मूव करता है, सही है। तो लोग यहाँ पे ये चीज़ बात कर लेते हैं, में ओपन। ओके, अब देखो ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो ट्रेन आगे जब बढ़ रही है तो ट्रेन जब आगे बढ़ी तो यहाँ पे उस फ्रेम लगा हुआ है, डोर है, तो फ्रेम भी हमारा क्या, ट्रेन हमारी मोशन में आ गई, तो फ्रेम जो है डोर का is also set into motion, but the door is still at rest, डोर हमारा क्या है, is still at rest due to inertia of rest, and वो क्या करेगा, वो पीछे की तरफ हो जाएगा, और ऐसा हम लोग को लगता है कि ओपन हो गया है, ऐसा लगता है कि ओपन हो गया है, ऐसा होता ही है कि वो क्या होगा, रेस्ट पे है तो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा डोर हमारा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और ये हमारा डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ से स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, ये हम ओपन हो जाएगा, ये पार्ट हमारा ओपन हो जाएगा डोर, सही है। ओके, अब इनर्शिया ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग अ लेवल रोड डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ही स्टॉप्स पेडलिंग। तो साइक्लिस्ट है तो पेडल करना उसने बंद कर दिया है यहाँ पे, एंड वो कह रहा है कि द साइकिल विल नॉट कम टू रेस्ट आफ्टर he stops pedaling. The cycle will not come to rest after he stops pedaling because the cycle is set into motion due to inertia of motion. And therefore it does not come to rest. But after some time we see that due to the force of friction between the tires of this bicycle and the ground, which the friction acts in the opposite direction to the motion of the cycle, and therefore it stops the cycle. सही है। दूसरा उसके बाद में when a passenger jumps out of a moving train he falls down। एग्जाम में काफ़ी आता है, एक बस से हम लोग निकलते हैं जैसे ही, तो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग का कॉमन एक्सपीरियंस हल्का सा दौड़ते हैं, सही ना, ट्रेन से ट्रेन हल्की सी भी मूविंग है, उससे अगर हम लोग निकल रहे हैं तो हल्का सा उसके जंप करने के बाद में दौड़ते हैं। अगर जंप नहीं करते हैं, जंप करने के बाद में नहीं दौड़ेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, लेट अस सी। When we jump out of a moving bus or a moving train, तो when we were in the bus, तब हम लोग पहले बात करते हैं, when we were in the bus, our body was in motion. Our body was in motion with the bus. But when we jumped out of the bus,
the lower part of the body, that is the legs, come in contact with the ground and they come at rest. But the upper part of the body is still at motion due to inertia of motion, and therefore the person falls. And if he has to avoid falling, he will jump in the direction of the motion of the bus. यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन में बस ट्रैवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उस आदमी को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा. ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड. एक रनिंग कार थी, कार रन कर रही है और एकदम से स्टॉप हो जाती है. पैसेंजर क्या है, आगे एकदम से गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा. व्हाई दिस हैपेंस? ओके, देखते हैं हम लोग. पैसेंजर यहाँ पे कार चल रही थी, मोशन में थी, कार मोशन में है, हमारी बॉडी भी क्या है, मोशन में. लेकिन जैसे ही कार स्टॉप हो जाती है तो मेरी कार के टच में मेरा क्या है, लेग्स है. तो लेग्स कम टू रेस्ट as the car comes to rest, but the upper part of the body is still in motion due to inertia of motion and therefore it leans forward. Simple सा हो गया. An athlete often runs before taking a long jump. जब भी एक एथलीट होता है, उसको लॉन्ग जंप लेनी होती है, तो वो रन क्यों करता है? रन इसलिए करता है कि अपनी बॉडी को मोशन में ला पाए, और मोशन में ला पाएगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें डेवलप हो जाएगा and therefore it becomes easy for him to take a long jump. Okay. A ball thrown vertically upwards by a person in a moving train comes back to his hand. ये मैं बताता हूँ. यहाँ पे एक पर्सन है, ट्रेन में बॉल उसने थ्रो करी, सही है, ये बॉल थ्रो करी है, ऊपर थ्रो करी है. लेकिन हम लोग देखेंगे मूविंग ट्रेन है और ये पर्सन है और इसने बॉल थ्रो करी है और ट्रेन मूव कर रही है. लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ देर बाद जब बॉल वापस आएगी तो बॉल वापस उसी के हाथ में आती है फिर से. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द ट्रेन इज इन मोशन, द पर्सन इज ऑल्सो इन मोशन विद द ट्रेन एंड देयरफॉर द एयर इन द कंपार्टमेंट इज ऑल्सो इन मोशन. तो बॉल भी हमारी क्या होगी, उतनी ही डिस्टेंस शिफ्ट करेगी जितना डिस्टेंस उस मैन ने शिफ्ट करा है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन. और तभी वो बॉल यहाँ गई थी और लेकिन वापस यहाँ पे आई है, और क्योंकि पर्सन भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट पर्सन का हो चुका है और तभी द बॉल विल कम इन हिज हैंड. ओके, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक अबाउट लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं. व्हाट लीनियर मोमेंटम इज. हम लोग एक कॉमन एक्सपीरियंस हम लोग ने देखा है कि अगर कोई मैं पीछे का एग्जांपल ले लेता हूँ. मैंने अभी एग्जांपल लिया था टेनिस बॉल का और एक क्रिकेट बॉल का. टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, और दोनों की अगर सेम वेलोसिटी है तो किसको यहाँ पे रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा नीड होगी? क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा नीडेड होगी और यहाँ पे टेनिस बॉल को रोकने के लिए फोर्स कम नीडेड होगी क्योंकि उसका मास यहाँ पे ज़्यादा है. तो यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स ओवर हियर. फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स ओवर हियर व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम मूविंग. तो एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है और एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. अगर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए. अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए. सही है. So force is depending on two things, mass and velocity, and the product of mass and velocity is called as linear momentum. The product of mass and velocity is called as linear momentum. Linear momentum क्या होता है? Denoted by P. It is a vector quantity and it is a product of mass and velocity. वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. सही है. अब इसका एसआई यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे एसआई यूनिट इसका क्या होगा? मास हमारा किस में होता है? केजी में होता है. वेलोसिटी मेरी मीटर पर सेकेंड होती है. तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया. अगर सीजीएस यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम हमारा हो जाता है किलोग्राम, और मीटर हमारा होता है सेंटीमीटर में, और सेकंड रहता है.
तो ये हमारा हो जाता है सही, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गया, और सीजी यूनिट उसका हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा हो गया. So tomorrow we will talk further in this chapter. Thank you for today.